Hello guys, welcome back to our channel and we are on due Pariksha and I hope आपको last 2 units of carbohydrate metabolism that is a paper of biochemistry honors in DU आपको समझ आया हो। और गाइस प्लीज आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, प्लीज कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है, लाइक करिए हमारी वीडियोस को, अगर आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि हम इसे कैसे और इम्प्रूव कर सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आगे वीडियोस को अच्छे से अच्छा बनाएं, इम्प्रूव करें और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तो आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का थर्ड यूनिट दैट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम PYQs देखेंगे, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड देन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का डिजीजेस देखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Glycogen is an efficient storage form of glucose. Why? Because we know glycogen is a highly branched polymer of glucose molecule. It has alpha 1,6 linkage, that is the branching point, and alpha 1,4 linkage. It is highly branched structure and it has many non-reducing ends. Each branch ends, जो branch के जो ends होते हैं ना, देखो ये वाला portion, ये non-reducing ends होते हैं. They act as a multiple points for the enzyme activity. वो कौन सा enzyme है? Glycogen phosphorylase that enables the quick release of the glucose molecule during energy demand. And the branched structure of the glycolysis make structure more compact and increases, or you can say enhances solubility. Next question is glycogenesis needs a primer to initiate itself. Glycogenesis means synthesis of the glycogen, and in this glycogen synthase enzyme is involved, that is a key enzyme. It cannot start a new glycogen chain from scratch. It forms alpha 1,4 linkage between glucose molecules. It cannot add until 4 glucose molecules or more are added on the chain. For this we require a primer. It requires a primer because it only extends existing chain, at least have 8 glucose residues in protein, which is a dimer, and that makes a primer 8 subunits long. If we look at the pathway how glycogenesis occurs, so it starts from the glucose molecule that undergo phosphorylation by hexokinase or glucokinase and forms glucose 6 phosphate. Then glucose 6 phosphate is converted to the glucose 1 phosphate by phosphoglucomutase enzyme. It is phosphoglucomutase enzyme. And then glucose 1 phosphate is converted to the UDP. देखो ग्लाइकोजन के पास एक टायरोसिन रेसिड्यू होता है at its active site which attaches a glucose molecule from UDP glucose to its hydroxyl group. देखो to its hydroxyl group and displaces UDP molecule. It is done by glucosyl transferase activity. Then it adds another molecule of the UDP glucose to the fourth carbon of the glucose molecule already attached to the hydroxyl group of the tyrosine molecule. Then it extends chain and it occurs 6 times to make, and it form a short alpha 1,4 linked chain. After that glycogen primer बन जाने के बाद फिर आता है glycogen synthase then take over to continue chain elongation. Now let's look at another question. Give the steps involved in the addition of the new glycosyl unit to the non-reducing ends of the glycogen starting with glucose 6 phosphate and also state the type of bond that is formed. देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि इट इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज बाय द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज.
ये glucose 6 phosphate that gets converted to glucose 1 phosphate by the activity of what enzyme? Phosphoglucomutase. Okay, after that it is converted to UDP glucose by UDP glucose phosphorylase. Glycogen is required as to make a primer that is 8 subunits long. After that only glycogen synthase act on the chain to extend the chain. See, this is the pre-existing chain. It is a pre-existing chain, and here at the C4 carbon of the last glucose molecule of the chain, ये non reducing end है. यहाँ हमारा UDP glucose आता है. Incoming UDP glucose molecule then gets attached to the non reducing end of the pre-existing chain of the glycogen, and it elongates glycogen molecule by one glucose molecule. It is done by glycogen synthase. देखो या इसमें अगर हम देखें सेकंड स्टेप जो है इलोंगेशन स्टेप में हमारा इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम. इसमें हमारा ये प्री एग्जिस्टिंग चेन का नॉन रिड्यूसिंग पार्ट आ गया, एंड हो गया, जिसके पास हमारे एन रेसिड्यूज हैं. उसमें इनकमिंग यूटीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने अटैक करा टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड. उसने बॉन्ड बनाया. किस टाइप का बॉन्ड बनाया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, बिटवीन C1 carbon of incoming glucose molecule जो UDP glucose molecule से आता है हमारा ग्लूकोज, and C4 carbon of the pre-existing glucose molecule in glycogen chain. glycogen chain में इन दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, ग्लाइकोसिडिक एडिशन ऑफ द 11 रेसिड्यूज, ग्लूकोज रेसिड्यूज. उसमें हमारा फिर उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आता है, दैट इज अमाइलो 1,4,2,1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आता है. वो एक तरीके से ब्रांचिंग पॉइंट बना देता है. तो ब्रांचिंग एंजाइम होता है. इट फॉर्म्स व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? अल्फा 1,6. वी विल सी हाउ branching enzyme induces branching in the glycogen chain in the next question. Reaction that introduces branching in glycogen. So branching in glycogen is introduced by a special enzyme that creates a alpha 1,6 glycosidic bond, and it is done by glycogen branching enzyme, also known as amylo 1,4,2,1,6 trans glycosylase enzyme. इसके अंदर क्या होता है? After a linear chain of glycogen is formed with 11 glucose units, the enzyme removes a block of 6 to 7 glucose residues from a non-reducing end, और इसको ट्रांसफर कर देता है इस ब्लॉक को टू एन इंटीरियर रेसिड्यू ऑफ द सेम चेन या तो अनदर चेन, एंड क्रिएट्स अ ब्रांच पॉइंट and a alpha 1,6 glycosidic bond. Now let's understand this with a diagram. Here we have, after elongation 11 glucose residues are added. ये आता है हमारा non reducing end यहाँ पे. तो ये क्या करता है? ये वाला जो ब्लॉक होता है ना हमारा, यहाँ जो ब्लॉक होता है, रिमूव कर देता है 6 to 7 ग्लूकोज रेसिड्यूज का जो पूरा ब्लॉक होता है ना, फ्रॉम अ नॉन रिड्यूसिंग एंड टू एन इंटीरियर रेसिड्यू. यहाँ इसको ब्लॉक को रिमूव कर दिया. इसके बाद एक तरीके से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ब्रांचिंग पॉइंट क्रिएट कर दिया. अब ये ब्रांचिंग क्यों जरूरी है? ब्रांचिंग इसलिए जरूरी है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होंगे जो स्पीड अप कर देंगे सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और कॉम्पैक्ट कर देंगे इसके स्ट्रक्चर को. दैट्स व्हाई ये एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, एंड एनहेंसेस स्टेबिलिटी. मतलब ग्लाइकोजन को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम एग्रीगेटिंग.
If the steps involved in glycogenolysis with the generation of the glucose 1-phosphate and glucose. Glycogenolysis means breakdown of the glycogen, and it mainly occurs in liver and muscle muscle. As we know, glycogen is made up of glucose residue. For example, it is a glycogen with n glucose units, and in the first step of the glycogenolysis, glycogen phosphorylase act by phosphorylases and cleaves alpha 1,4 बॉन्ड. ये जो alpha 1,4 linked बॉन्ड होता है ना, उसको क्लीव करता है एट नॉन रिड्यूसिंग एंड, और क्या जनरेट करता है, ग्लूकोज 1-phosphate एंड ग्लाइकोजन, loss of one glucose residue, and it works until 4 residues before a branch point. अब हम देखते हैं वाले डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर हम ब्रांच पॉइंट से नंबरिंग करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है ना, वो क्लीव करता है. ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया. ये यहाँ से क्लीव करना शुरू करता है और क्लीव करता है किसको, अल्फा 1,4 जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, उसको. और ये कहाँ तक वर्क करता है, अंटिल 4 रेसिड्यूज बिफोर दी ब्रांच पॉइंट. जब तक हमारे ब्रांच पॉइंट के बाद जब 4 रेसिड्यूज रह जाते हैं ना, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है. यानी ये 5 6 7 8 9 इसको क्लीव कर देगा, और ये सब हमारे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 1-phosphate मॉलिक्यूल. ऐसे ही जो यहाँ ब्रांच पॉइंट होगा नीचे, वहां भी ऐसे एक्ट करेगा. 1 2 3 4 ये क्लीव करा, यहाँ से 2 3 4 यहाँ से क्लीव करा, तो ये हमारे ग्लूकोज 1-phosphate मॉलिक्यूल आ गए. फिर आता है हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसके पास 2 एक्टिविटी होती है. एक होती है ट्रांसफरेज एक्टिविटी. ट्रांसफरेज एक्टिविटी में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी मेंशन है. ये जो येलो कलर के जो हमारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं, एज अ होल इनको तीनों को क्या करता है, ब्लॉक ऑफ 3 ग्लूकोज रेसिड्यू को ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम अ ब्रांच टू नियर बाय नॉन रिड्यूसिंग एंड. यहाँ देखो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, इन तीनों को यहाँ अटैच कर देगा, और सिर्फ हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचता है. उसके बाद ये अपनी ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी शो करेगा. वो क्या रिमूव कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फ्रॉम ग्लाइकोजन 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय क्लीविंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब ये कर देगा, फ्री ग्लूकोज रिलीज हो गया. अब ये बची हमारे पास लीनियर चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर, जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 लिंकेज. तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. अब इन सब पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा और इन सबको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लूकोज 1-phosphate मॉलिक्यूल को. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. Elaborate how glycogen phosphorylase is activated by glucagon. Glucagon is released when blood glucose level is low. ये एक तरीके से एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को बाय फॉस्फोराइलेटिंग. अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है ना, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉस्फोराइलेज ए जब वो फॉस्फोराइलेट होता है और एक्टिवेट होता है, इट इज एक्टिवेटेड फॉर्म. एंड डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इसकी कौन सी होती है, जब वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट होता है वो राइलेज बी. नाउ व्हेन ग्लूकागॉन इज रिलीज, ये ग्लूकागॉन जब ब्लड में रिलीज हो जाता है, बाइंड कर जाता है टू द रिसेप्टर ऑफ द हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन. फिर एक तरीके से पूरा कैस्केड ऑफ द फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स होते हैं इसके अंदर. ये किसको एक्टिवेट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज. इट इज एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो catalyzes conversion of the ATP into cyclic AMP. Cyclic AMP then activates protein kinase A that converts inactivated phosphorylase kinase B
into phosphorylase kinase A by transfer of phosphate group from ADP to phosphorylase kinase A. This phosphorylase kinase A then act on the glycogen phosphorylase B that is inactive form. ये इनएक्टिव फॉर्म है जिसके अंदर हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज से ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट ग्रुप टू द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए. ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी दोनों ही डाइमर्स होते हैं और इन दोनों के एक्टिव साइट पे सीरीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं. वो सीरीन रेसिड्यूज जब फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो हमारा फॉस्फोराइलेज ए फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी. नाउ सी ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमारा फॉस्फोराइलेज बी है, यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी. जब ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, यानी इसके जो सीरीन साइड चेन होती है, सीरीन रेसिड्यू होता है वो जिसपे फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है. लेकिन जब हमारा ग्लूकागॉन आता है वो क्या लेकर आता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज ए. वो एक्ट करता है, किसके ऊपर एक्ट करेगा, फॉस्फोराइलेज ए को एक्टिवेट कर देगा बाय अटैचिंग फॉस्फेट ग्रुप टू द सीरीन रेसिड्यू ऑफ द फॉस्फोराइलेज सबयूनिट. But when insulin is present and insulin is released, ये वो क्या करता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है और वो किसका कन्वर्जन कर देता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए इंटू फॉस्फोराइलेज बी इनएक्टिव फॉर्म में, और प्रमोट करता है इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस. और ग्लूकागॉन प्रमोट करता है बाय फॉस्फोराइलेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी इंटू इट्स एक्टिव फॉर्म और प्रमोट करता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन बाय एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. गिव द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. फर्स्ट वन इज वॉन गिल्ट डिजीज दैट अकर्स, मेन कॉज एंड इसका है and that occurs due to deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme, mainly in liver and intestinal mucosa, which is involved in the formation of the glucose 6 phosphate to the free glucose molecule and which impairs what, glycogenolysis, impaired glycogen breakdown, which results in hypoglycemia and hepatomegaly, enlarged liver, and glucose is not synthesized from the lactate that is produced in the muscle and liver, so lactate acidemia is also seen. Lactic acidemia is also seen. Lactate level rises and the pH is lowered. In the pH of the blood is lowered. Then hyperuricemia is also one of the symptoms of this disease, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट accumulate हो जाएगा और it is diverted to the HMP shunt, that is pentose phosphate pathway, which leads to the increased production of the ribose phosphate, increased levels of the phosphoribosylphosphate phosphate, and enhanced metabolism of the purine nucleotide, which leads to the formation of the uric acid. Second one is McArdle disease that occurs due to deficiency of the muscle glycogen phosphorylase. The glycogen phosphorylase is involved in the cleavage of the alpha 1,4 linked glycosidic bond and releases glucose molecule from the glycogen non-reducing end as glucose 1 phosphate. And what happens because of its deficiency, impaired glycogen breakdown in the skeletal muscle. Symptoms include muscle cramps, pain, and fatigue during exercise. Now Pompe's disease.
that occurs due to deficiency of lysosomal alpha-1,4 glycosidase, also known as acid maltase, that leads deficiency of which leads to the accumulation of the glycogen in lysosomes of muscle and other tissue, because of which what happens, lysosome are the compartments inside each cell जहाँ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इन पॉम्पीज डिजीज ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से बिल्डअप हो जाएगा ग्लाइकोजन और इतना अक्यूमुलेट होने लगेगा कि लाइसोसोम एक्सपैंड होने लगेंगे स्पेस में, मसल सेल में, कि मसल सेल हमारा डैमेज हो जाएगा। अर्ली ऑनसेट में इसके सिम्टम्स आते हैं कार्डियक इन्फेक्शंस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एंड लेट ऑनसेट में स्केलेटल एंड जॉइंट पेन। It usually affects enlargement of heart and nervous system is affected in these disease. Now, Cori disease. Cori disease occurs due to deficiency of D-branching enzyme, that is alpha-1 glycosidase. That also leads to the incomplete glycogen degradation, accumulation of abnormally structured glycogen. That symptoms include hepatomegaly, again enlargement of the liver, muscle weakness, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो जनरली माइल्डर होते हैं देन वॉन गिव। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, आपको मजा आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं मिस्टेक करी है, हमने किसी तरीके से हम अपना आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को ऐसे करना चाहिए, तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए टेलीग्राम ऐप पर, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को कस्टमाइज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको DU के PYQ सॉल्व यहाँ मिलते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।